Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I am telling you about cylindrical thin-walled pressure vessels. And the learning objective of this lecture are how we can develop an expression for longitudinal stresses for a thin-walled pressure vessel in terms of a pressure and the dimensions of the vessel. Then we develop an expression for the hoop stresses for a thin-walled pressure vessel in terms of the pressure and the dimensions of the vessel. And finally, we determine the relationship between the longitudinal stresses and the hoop stresses for a thin-walled pressure vessels. As you know, cylindrical pressure vessels with the circular cross sections are found in industrial settings like compressed air tanks and the rotate motors, and in homes like fire extinguishers and the spray cans, and in the countryside propane tanks and the drain silos. So the pressurized pipes such as the water supply pipes and the pan stores are also classified as the cylindrical pressure vessels. So the analysis of cylindrical vessels begins by determining the normal stresses in a thin walled circular tank AB subjected to the internal pressure as shown over there. ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है ए और बी इसकी जो है वो डायमेंशन दी हुई हैं और ये मेरे पास कट है जो मैं इसके ऊपर अप्लाई करते हुए इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस ऐड करेंगी उसको फाउंड करूंगा. So a stress element with its face parallel and perpendicular to the axis of tan is shown over the tan as shown there. So the normal stress sigma 1 or sigma 2 acting on the side faces of this element are the membrane stresses in the wall. So no shear stresses act on these faces because of the symmetricity of the vessel and its loading. Therefore, the stresses sigma 1 and sigma 2 are called the principal stresses. So because of their direction, the stress sigma 1 is called the circumferential stress or the hoop stress, and the stress sigma 2 is called the longitudinal stress or the axial stress. So each of these stresses can be calculated from equilibrium by using the appropriate free body diagram. So we will also neglect the weight of the content and the weight of the structure itself. So these forces are generally many orders of the magnitude less than the force due to the internal pressure and the force from the resulting stresses in the cross section as I explained these terms before in previous video. सो ये जो मेरे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है इसके ऊपर जब हम क्रॉस सेक्शनल कट अप्लाई करेंगे तो ये मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा जिसके ऊपर प्रेशर की फोर्स ऐड करेगी दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया और उसके साथ साथ मेरी स्ट्रेस जो रेजिस्टिव फोर्स अटर हो रही है उसके थ्रू यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो अटर हो रहा है दैट इज longitudinal to its axis. So after applying the equilibrium condition in the z direction sigma fz is equal to 0 तो हम यहाँ पे अब इनकी स्ट्रेस और प्रेशर की जो है इक्वेशन बना लें जैसे जो स्ट्रेस हमारी लॉन्जिट्यूडल एक्ट आ रही है इट इट्स टाइम्स द पाई आर स्टेयर आउटर माइनस पाई आर स्टेयर इन इनर डायमीटर. तो ये जो मेरे पास स्ट्रेस की फोर्स जो रेड एरोस के साथ शो की हुई है जो लॉन्जिट्यूडल स्ट्रेस है वो और उसके साथ उसका एरिया क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स इसको निकालना चाह रहे हैं ना तो sigma is equal to force per unit area as we know that. So that sigma times the pi r square सर्कल का एरिया जो है हमारे पास पाई आर स्टेयर होता है तो ये आउटर और इनर सर्कल जो है उनका यहाँ पे हमने एरिया जो है वो इसके साथ माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा. Similarly for the case of pressure which is in the opposite direction so negative P for the pressure times the area pi r square और आर स्टेयर जो है हमें पता है आर जो है वो डी बाई टू के बराबर होता है तो आर स्टेयर इज इक्वल टू डी स्टेयर बाई फोर. सो सिंपली प्लग इन और यू कैन से पुट दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर then you come up with p times pi d square over 4 is equal to 0. So after that cancel out or cancel out these pi terms ये पाई हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और
we know that from previous video, radius of outer plus radius of inner is equal to d. सो यहाँ पे आर स्टेयर आउटर माइनस आर स्टेयर इनर रह जाएगा। मैं इसको इस तरीके से जो है एक्सप्रेशन को लिखूंगा, आर आउटर प्लस आर इनर टाइम्स आर आउटर माइनस आर इनर। आफ्टर मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स यू come up with this solution as well. So r outer plus r inner, as we know that, is equal to the d. So simply plug here d, and r outer minus r inner जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू द टाइम टी, थिकनेस टी, जो कि आपने यहाँ पे शो किया हुआ। ये थिकनेस टी है हमारे पास, ये डायमीटर डी है, और ये आर आउटर और आर इनर है। Then simply rearrange the terms and you come up with this solution. Stress, longitudinal stress is equal to P times D divided by 4T. Name it equation 1. ये हमारे पास इक्वेशन है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस की, जो कि आपके सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल्स के ऊपर एक्ट करेगी ऑन द लॉन्जिट्यूडनल साइड। अब हम इसकी ही जो जो हमारी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है या होप स्ट्रेस जो है उसको हम देखेंगे। उसके लिए मैं ट्रांसलेशनल टाइप को अब इस डायरेक्शन में टाइप करूंगा, और देन यहाँ पे जो ब्लू एरोज हैं वो मेरे पास प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगेन जो रेड एरोज हैं वो मेरे पास हूप स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थिकनेस इसकी डी है और इसकी लेंथ जो है वो एल है। तो दिस टाइम जो मेरी स्ट्रेस की डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ वाई डायरेक्शन है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। सो बाय अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं यहाँ पे स्ट्रेस हूप टाइम्स 2L टाइम्स टी लिख दूंगा। ये मेरे पास इसकी लेंथ L है और इसकी थिकनेस जो है वो T है, और ये जो मेरी स्ट्रेस है हूप स्ट्रेस वो इस साइड पे भी ऐड कर रही है और इस साइड पे भी ऐड कर रही है, इसलिए मैं इसको 2 टाइम्स L टाइम T लिखूंगा इसका एरिया के लिए। माइनस फॉर द केस ऑफ प्रेशर की जो फोर्स लग रही है, सो P ऐड कर रही है, और जो एरिया है मेरे पास वो D टाइम्स T है। ये मेरे पास डायमीटर इसका D है और ये इसकी थिकनेस T है, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो L है, तो ये D टाइम L हो जाएगा, और T थिकनेस जो है वो हमारी यहाँ पे हूप के लिए कैलकुलेट हुई थी। So after cancel out this L, you come up with this solution, that is hoop stress is equal to PD divided by 2T, और we name it is equation 2। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और यू कैन सी हूप स्ट्रेसेस है और जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेसेस है उन दोनों को ड्राइव कर लिया है। So after comparing these two equations, we see that the circumference stress or the hoop stress in a cylindrical vessel is equal to twice the longitudinal stresses as shown here. So hoop stress is equal to 2 times of longitudinal stress. Like from this result, note that the longitudinal welded seam in a pressurized tank must be twice as strong as circumferential seam. तो इस पॉइंट को मैं डिटेल के साथ इन अ मिनट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो जस्ट टू रिकॉल और टू समराइज, हमने एक प्रेशर वेसल्स लिया था फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, देन अप्लाई द एक्सटर्नल लोड थ्रू लिक्विड और गैस, and then we see the internal forces that acts upon it according to their longitudinal and the circumferential axis. And then we calculate the longitudinal stresses and the hoop stresses, and for the structure performance we see कि जब हम longitudinal stress अप्लाई करते हैं उस सूरत में मेरे पास जो इसके अंदर फेलियर होने के चांसेस हैं वो कुछ इस तरह से होंगे, और फॉर हुप स्ट्रेसेस मेरी स्ट्रेसेस जो है वो इस तरीके से ऐड करेंगे। सो इम्पोर्टेंट जो टर्म यहाँ से आई कि जैसे यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन के अंदर दिखाया जा रहा है, एक थिन वेल्डेड पाइप है जो कि एक एक्सेसिव गैस प्रेशर के थ्रू इसके अंदर रप्चर अकर हुआ है इन इज द सर्कमफ्रेंशियल और द हुप डायरेक्शन, सो द स्ट्रेस इन दिस डायरेक्शन इज ट्वाइस दैट इन द एक्सियल डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि जब आपने जहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो आपका प्रेशराइज टैंक है, आपकी जो लॉन्जिट्यूडनल साइड होगी उस साइड पे आपका वेल्डेड सीम डबल होना चाहिए एज कम्पेयर टू सर्कमफ्रेंशियल सीम। क्यों? क्योंकि आपकी हूप स्ट्रेसेस जो है इक्वल टू है 2 टाइम्स ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, सो फर्दर इसको हम डिटेल के साथ थ्रू मोहर सर्कल देख लेते हैं। तो ये मेरे पास प्रेशर वेसल्स है, इसके ऊपर मैं स्ट्रेस ब्लोड ड्रा करने वाला हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे
जूम करके दिखा दिया। जो लॉन्डिट्यूडनल स्ट्रेस थी हमने कैलकुलेट की, दैट इज पी डी ओवर 40, और जो हूप स्ट्रेस है जो स्ट्रेस सर्कमफ्रेंशियल पे एक्ट कर रहा है, दैट इज पी डी ओवर 2t। सो फॉर मोर सर्कल हम इसका वर्टिकल पॉइंट लेते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन जो है हमारे पास उसके अंदर लॉन्डिट्यूडनल फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज पी डी ओवर 40। एंड फॉर द हॉरिजॉन्टल मतलब डायरेक्शन हमारे पास जो है हूप स्ट्रेसेस है, दैट इज पी डी ओवर 2t। क्योंकि ये इससे 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के पॉइंट्स आ गए। देन हम स्टूडेंट सर्कल ड्रा करेंगे, और हम यहाँ से शीयर स्ट्रेस जो है, मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू सिग्मा हूप माइनस सिग्मा longitudinal stress is divided by 2, and you may notice this term in our previous lectures. So if you forget how we can calculate the maximum shear stress, you can go through the previous modules video. So this is the final term. We come up with the uh, shear maximum shear stress, or after we can see that the sigma hoop, or like hoop stress is equal to 2 times of longitudinal stress. तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म थी जो हमने यहाँ से ड्राइव की है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, सो दिस कंक्लूड आवर लेक्चर।